So hello student, this will be our final lecture for the log and exponential. In this lecture we are going to see that what kind of questions we have to face while attempting the paper JEE Mains और JEE Advance. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हो सकता है कि मेरे कोई एक इन्फॉर्मेशन रह गई हो, दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो आई विल टेल. ओके, सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. इट सेज दैट log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग. ठीक है, एक बार के लिए भूल जाओ, अब पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें कि log का बेस ही नहीं है. ओके, सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी डोंट हैव बेस ऑफ log. ओके, so in mathematics whenever the base is not given we will assume it e, log x base e. ठीक है, हो सकता है log को कहीं जगह ln से भी रिप्रेजेंट कर रखा हो, ln x. दिस इज ऑल्सो log x base e. ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैथमेटिक्स. इन केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों अलग होते हैं, log अलग होता है, ln x अलग होता है. ठीक है, इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स we will take base 10, but in mathematics we will take base e in both cases. अब e क्या होता है? e is a Euler number. e is a Euler number between 2 and 3. Okay? e is a Euler number between 2 and 3. और अगर e का आप क्या करते हो? Greatest integer लेते हो, that is equal to 2. Greatest integer means always left side number, left side integer. ठीक है, e की approximate value होती है 2.71. ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको बता दी है. वैसे इसका कोई यूज नहीं है, बट स्टिल ये मैंने आपको बता दी. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू. चलो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. लेट्स से ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है. तो हमारे बेसिकली क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है log a प्लस log b इक्वल टू 0. नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज अ प्रॉपर्टी. दिस विल बी log AB is equal to 0. ठीक है, log AB equal to 0 कब आता है? When AB is equal to 1. So AB should be 1. What was A? हाँ बेटा, what was A? A was ln x. log x, मैं आपको log से लिखता हूँ. log x ब्रैकेट log x power 4 minus 3 equal to 1. What you can write? Again you can use one more property. log x bracket. One more property what? 4 को आप outside ले सकते हो. That is 4 times log x minus 3 equal to 1. Now what you will do? You will let log x equal to t. मैंने assume कर लिया. ठीक है, जैसे ही हमने log x को t मान लिया, और log x कहाँ जाता है? log x की हमें रेंज याद है, that log x हमारा होता है इन्फिनिटी. दैट मीन्स t बिलोंग्स टू r. log x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा जाता है, रेंज होगी r. नाउ व्हाट? सो दिस विल बी t 4t स्क्वायर माइनस 3t एंड माइनस 1 इक्वल टू 0. देख लो वापस से. t मल्टीप्लाई बाय 4t स्क्वायर, दैट इज 40, दैट इज 4t स्क्वायर. t multiplied by minus 3, that is minus 3t. 1 को दे ले आओगे तो minus. Okay, now we can use quadratic. Now again sum of the coefficient is what? 0. So one root will be t minus 1 and another will be 4t plus 1 c by equal to 0. So what you got? You got t equal to 1 or t equal to minus 1 by 4. That means what you can write? You can write log x base e. Okay, you have to write base e is equal to either 1 or log x base e is equal to minus 1 by 4. Okay, so now what you will do? Solve it. What you get? x is equal to e. इसको सॉल्व करने पे और यहां से आ जाएगा आपके पास x is equal to e to the power minus 1 by 4. Will those be the answer? Okay, so we have to be careful. Why? Because we have condition that inside log there must be a positive number. There must be a positive number. So we had 2 log.
वन वॉज ln x, यहां से क्या आ गया हमारे पास, दैट x मस्ट बी पॉजिटिव, सो बोथ x आर पॉजिटिव, ठीक है. सेकेंड वॉज log 4 times ln x minus 3. We had this. Then अब log के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, that means 4 times ln x. I am writing ln. Okay, I should write log. Both are same thing, but I will write it log. Okay, so this will be log x minus 3. That means 4 times log x minus 3 should be greater than 0. Why? Because it is written inside the log. Or what you can do, you can put log x equal to minus 1 by 4 here. And you will see that this is negative. So minus 1 by 4 won't be answer. But still, we will do it like this. So log x base e should be greater than 3 by 4. Why? Because we can revise our inequality. Okay. Now base is greater than 1. So inequality won't change after removing the log. So this will be x should be greater than e to the power 3 by 4. Okay. X should be greater than e to the power 3 by 4. And e to the power 3 by 4 is greater than e to the power minus 1 by 2 definitely, but less than e. Okay. So which answer is acceptable? It says that x is greater than e to the power 3 by 4. तो x कहाँ लाई करेगा बेटा? यहाँ कहीं लाई करेगा इन दोनों के बीच में. मतलब x जो भी होगा e to the power 3 by 4 से बड़ा होगा. That means we have to reject all the answers which were smaller than e to the power 3 by 4. This answer is cancelled. So what you will get? You will get answer x is equal to e only. Okay. So we have to careful about these things, that you have two logs. Okay. You have two logs, that a must be greater than 0 and b must be greater than 0. You have to use these conditions also. Okay. आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ऑप्शन में होगा तो अपन टिक लगा देंगे, अपने को दोनों चीज चेक करनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अगेन. अब नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन बोथ थिंग्स. बेस इज गिवन बट बेस इज वेरिएबल हियर. ओके. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, दैट x must be greater than 0 and x cannot be 1. We will remember this. Okay. So now what we can do, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. क्वेश्चन लिखा हुआ है log 9x स्क्वेयर बेस x एंड log, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये होल स्क्वेयर है. ओके. log x बेस 3 होल स्क्वेयर इक्वल टू 4. What we can do? We can simplify this log. So log 9 base x plus log x square base x. Okay. Multiply by log x base 3 whole square equal to 4. Okay. So now what we can do? 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 स्क्वायर लिख सकते हो. सो 2 आगे आ जाएगा. ट्वाइस ऑफ log 3 बेस x प्लस log x स्क्वायर बेस x कितना होता है? 2. सो दिस विल बी log x बेस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. अब क्या करें? देखो हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट log a बेस b is equal to 1 upon log b base a. We have already studied that. तो हम क्या करना पड़ेगा? दोनों बेस को हम सेम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वन बेस इज x, अनदर बेस इज 3. So what we can do? We can take 2 outside and reject it from that side. Cancel it out. So this will be 1 upon log x base 3. इसको हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. 2 तो कॉमन आ ही गया था. प्लस 1 log x base 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. ओके. यू कैन टेक एलसीएम. एलसीएम टेक लेने पर क्या आ गया? 1 प्लस log x बेस 3. एलसीएम लोगे एक कैंसिल हो जाएगा. सो log x बेस 3 इज इक्वल टू 2.
again we have to do same thing, that let log x base 3 is equal to t. ठीक है, x पे हम शुरू में कंडीशन लगा चुके हैं, उस हिसाब से देख लेंगे. नाउ सॉल्व इट. सो दिस विल बी 1 प्लस t multiply by t is equal to 2. Solve it. This will be t square plus t minus 2 equal to 0. Again we have quadratic and sum of coefficient equal to 0. So this will be equal to what, beta? This will be, I think one solution is t minus 1 and one solution is t plus 2 equal to 0. So what you can do, you can write t is equal to 1 or minus 2. ठीक है, t था क्या? t था हमारे पास log x base 3 is equal to 1 or log x base 3 is equal to minus 2. When you are removing log, you will get x is equal to 3 to the power 1 or x is equal to 3 to the power minus 2. ठीक है, अब एक बार जब आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है, सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x is equal to 3 और x is equal to 1/9. ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन को आप क्या करो, इसमें सेटिस्फाई करवा के देख लो. ठीक है, वेदर बोथ आर वैलिड और नॉट. ओके, सो अगेन हमारे पास x पे क्या कंडीशन थी, हमने शुरुआत में देखी थी. x पे केवल ये कंडीशन थी कि x मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि x तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1. व्हाई? बिकॉज x इज रिटन इन बेस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी एक्सपोनेंशियल. इट शुड बी, यस इट इज एन एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, बट इट इज एन स्टूपिड एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रखा है विच इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तुम्हें दे ही रखे, तो तुम क्या कर सकते हो, सीधे सीधे सेटिस्फाई करवा के देख लो. बट व्हाट इफ इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ गया एंड पूछ लिया सम ऑफ रूट, इन दैट क्या करोगे आप इन दैट कंडीशन, बोलो. सो वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. 3 times 2x square minus 2 times 3 to the power x square plus x plus 6 plus 3 to the power 2 times x plus 6 equal to 0. ओके, पहली बार अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये नहीं पढ़ा हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाए. ओके, इवन एज अ टीचर whenever you are seeing this type of question, पहले तो जाता है यार क्या होगा, देन यू विल सी द हिंट्स. व्हाई? बिकॉज इधर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है 2 ऑफ x प्लस 6 और ये उनका हाफ लिखा हुआ है बीच में. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एक्सपोनेंट की. फिर इसको लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर x स्क्वायर इनटू 3 टू द पावर x प्लस 6, ये लिख सकता हूं. ठीक है, प्लस 3x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू 0. थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर x प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b. ओके, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन 3 to the power x square should be equal to 3 to the power x plus 6. Only when this a minus b whole square equal to 0 is possible. Okay, now what? सीधे सीधे दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए. x स्क्वायर, क्योंकि लिखा हुआ है हमारे पास कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, एंड कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल में अगर दोनों साइड बेस सेम है तो हमारे पास दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, x प्लस 6. लेफ्ट साइड में ले आओ आप, अब तो क्या है x square minus x minus 6 equal to 0. So if you are going to factorize it, that will be x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0. This will give you x कॉमन ले लोगे x minus 3 plus 2 कॉमन ले लोगे x minus 3 equal to 0. Factors are what?
factors are x plus 2 into x minus 3 equal to 0. So you will get either x equal to minus 2 or 3. ठीक है, so ऑप्शन कौन कौन सा हो गया हमारे पास? -2 3 वाला, -C. ओके, C will be the answer. सिंपल सा क्वेश्चन है. मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने को शुरुआत में कह दिया कि अगर आपसे गलती से क्या पूछ ले, सम ऑफ रूट पूछ ले. ये तो ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शंस में रख के देख सकते हैं, लेकिन सम ऑफ रूट पूछ ले, ऑप्शन थोड़ी गिवन होंगे इंटीजर टाइप में, तो आपको करना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़े PYQ है हमारे पास, ठीक है. PYQ में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक्सपोनेंशियल में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है देख के. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है. इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? e⁴ 4x प्लस 8 टाइम्स e⁴ 3x प्लस 13 टाइम्स e⁴ 2x माइनस 8 टाइम्स e⁴x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड गिवन है x बिलोंग्स टू R. यहां पे देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, चलो e⁴x को t लेट कर लेते हैं. लेट e⁴x इज इक्वल टू t. लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होते हैं. तो इसका मतलब t का जो भी सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा उसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे. t इज ऑलवेज पॉजिटिव. चलो देखते हैं. t⁴ प्लस 8 टाइम्स t³ प्लस 13 टाइम्स t² माइनस 8 टाइम्स t प्लस 1 इक्वल टू 0. प्लस 1 ही ना बेटा? हाँ ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट? बाय क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना ही नहीं सीखा हमने, क्या करें? सो हम कोशिश करते हैं बाय क्वाड्रेटिक को कैसे भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके करते हैं सॉल्व. ठीक है, तो क्या करें? डिवाइड बाय t². पूरी इक्वेशन को t² से डिवाइड कर देते हैं. सो ये किस में कन्वर्ट हो गया? t⁴ t² में 8 टाइम्स t प्लस 13 माइनस 8/t प्लस 1/t² इक्वल टू 0. चलो ठीक है. सो t² और 1/t² को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं. t² प्लस 1/t², ठीक है. t वाले एक साथ लाते हैं, प्लस 8t माइनस 8/t, ओके, और प्लस 13 है मेरे पास. हो गया क्या? t² 1/t² यहाँ पे आ गया, ओके. 8t माइनस 8/t इधर आ गया, इधर इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट वी कैन डू? हाँ, अगर हमें पता है तब तो हम थोड़ा देख के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बस ताड़ेंगे इस क्वेश्चन को और क्या करें. चलो ट्राई करते हैं. यहां से मैं क्या करता हूँ, 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना जाएगा? t माइनस 1/t इक्वल टू 0. एज वी हैव सो मच प्रैक्टिस, तो यहां से देखते ही पता चल रहा है कि जो t² प्लस 1/t² लिखा हुआ है, इसको हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं. t प्लस 1/t² में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और t माइनस 1/t² में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं? t माइनस 1/t². अच्छा, एक बार रफ में इसको ओपन करना. t माइनस 1/t². If I am going to open it, I will get t² a² plus b² 1/t² minus 2ab, so 2. So मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा -2 कर दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड भी करना पड़ेगा. सो प्लस 15, ठीक है. सो ये मैंने ऐड कर दिया. नाउ व्हाट? नाउ वी विल लेट t माइनस 1/t इज इक्वल टू u. हम बोले सर इतने कितने लेट करेंगे? जितना भी लेट किया है वो याद रखना है आपको. t माइनस 1/t इज इक्वल टू u. नाउ व्हाट वी कैन डू? वी गॉट द इक्वेशन u² प्लस 8 टाइम्स u प्लस 15 इक्वल टू 0. ठीक है, u² प्लस 8 टाइम्स u प्लस 15 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी कैन डू? अच्छा, तो फैक्टराइज हो रही है. फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके? इसके फैक्टर हो रहे हैं u प्लस 3 एंड u प्लस 5. दैट मीन्स you got u इज इक्वल टू, u पे कोई कंडीशन नहीं लिखी मैंने, t पे कंडीशन लिखी थी, t मस्ट बी पॉजिटिव.
सो u इज आइदर -3 और u इज इक्वल टू -5। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। सो u था क्या वैसे बेटा हमारे पास? u था हमारे पास t - 1/t इज इक्वल टू -3 और इज इक्वल टू -5। ठीक है, पुट करो, क्या आएगा मेरे पास? सो एलसीएम लेने के बाद आ गया t स्क्वेयर -3 आ गया +3t -1 इक्वल टू 0 और t स्क्वेयर +5t -1 इक्वल टू 0। देख लो, वापस से एलसीएम ले लो। t स्क्वेयर -1 उधर गया -3t इधर आ गया प्लस का, फिर वापस से t स्क्वायर -5t। ठीक है, आ गया ये। जब यहाँ पे से आप सॉल्यूशन निकालते हो तो दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से। t इज इक्वल टू किससे? द्विचार्य फॉर्मूला से, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 डिवाइड्स बाय कितना जाएगा अपने पास? इतना आ गया 2a, तो 2 एंड हियर t is equal to -5 plus minus b square that is 25 plus 4 divides by 2. We don't need exact values, okay? We just want to know that these are positive or negative. Again, t के पॉजिटिव नेगेटिव होने से हमारे पास सॉल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव होने का फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो एक बार तो देख लेते हैं। t इज इक्वल टू t1 t2 t3 t4 नाम देते हैं उसको हम। इसको t1 बोल दिया हमने माइनस वाले के साथ, तो -3 माइनस √13 डिवाइड्स बाय 2। यहाँ पे बोल देते हैं t2, नेगेटिव वाला ही लेते हैं, -5 माइनस √29 डिवाइड्स बाय 2। ये लिख दिया हमने, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? लेस देन 0, ठीक है। तो बोथ आर रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज t मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब कौन सा वाला लोगे आप? t3 दैट इज प्लस -3 प्लस √13 divides by 2 and t4 that is -5 plus √25 √29 divides by 2। ठीक है, बिल्कुल रफ आइडिया चाहिए मेरे को। ओके, t3 है क्या चीज वैसे? t3 हमारे पास e⁻x3, ये बोल देते हैं हम इसको, दैट इज हमारे पास आ गया -3 यानी √13 -3 डिवाइड्स बाय 2 एंड दैट इज e⁻x4 √29 -5 डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, आई एम डैम श्योर √13 कितना होता है? √13 √16 से छोटा ही होगा। सो अपने पास कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग -3 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड्स बाय 2। 100% लेस देन 1 लिखा हुआ है ये। बोलो, सेम टू सेम √29 हो गया 5 पॉइंट समथिंग -5 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग एंड 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2। अगेन दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। तो मेरे पास जो भी आंसर आ रहा है e⁻x3 दिस इज लेस देन 1 एंड e⁻x4 दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। दोनों साइड अगर मेरे को e नहीं मूव करना है तो क्या लूंगा मैं? लॉग लूंगा विद बेस e, ठीक है। और ये कितना आ गया? लॉग ले लिया आपने विद बेस e, क्योंकि हमारे पास जो e है बेस, ये जो e है, e क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है क्या? तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हटा रहा हूं मैं वापस से क्योंकि वो दिक्कत देगा। ओके, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो आपने क्या किया? लॉग ले लिया। सो दैट विल गिव यू x3 लेस देन log 1 base e, same to same x4 less than log 1 base e। again log 1 क्या होता है? बेस कुछ भी हो, 0। so x3 and x4, x3 is less than 0 and x4 is less than 0। now ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शंस क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। ऑप्शंस वर फर्स्ट 4 सॉल्यूशंस है ही नहीं, we don't have 4 solution, we got only 2 x3 x4। okay, then 2 solutions, ठीक है, ये वाली बात सही है, and only one of them is negative, ये भी गलत है। why? because हमारे पास both solution क्या आए थे? नेगेटिव। 2 solutions and both are negative। okay, थर्ड आंसर। ठीक है, हमारे पास कितने solutions है? 2 solutions and both are negative। okay,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास किस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है? हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सम। सम पूछा है, मतलब कितने हैं हमारे पास। चलो एक बार देख लो ये। लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू टी, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई टी स्क्वेयर माइनस 2 एंड 6 टाइम्स टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने e टू द पावर x को t लेट किया तो यहां से मैं श्योर हो गया कि t मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, फैक्टराइज कर लेता हूं। फैक्टर क्या होंगे मेरे पास? ये 4 है बेटा, 2 नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट। व्हाट वी विल गेट? t प्लस 2 t माइनस 2। ओके, सम ऑफ कोफिशिएंट देखो 0 आ रहा है क्या? नहीं, अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट 0 नहीं आ रहा, तो इसके फैक्टर अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं। 6 5 3 दोनों 6। ठीक है, 6t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ अगेन t प्लस 2, क्या ये 0 पॉसिबल है? क्योंकि t पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में व्हेनेवर वी आर एडिंग पॉजिटिव नंबर, तो दिस कैन नॉट बी 0, तो दिस कैन नॉट बी 0। इसको हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको 0 में भेज दो। फिर हमारे पास क्या बचा? t माइनस 2 एंड दिस विल बी, कॉमन क्या ले लोगे? 3t या 2t? 2t कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 3t माइनस 1 कॉमन ले लिया, एंड दैट विल बी 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आर t माइनस 2, देन हमारे पास हो गया कितना बेटा? 2t माइनस 1 एंड हमारे पास हो गया 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी गॉट t इज इक्वल टू 2 और 1/2 और 1/3। चलो एक बार वो लिख लेता हूं मैं। हमारे पास क्या गया? t1 इज इक्वल टू 2 और लाइन से लिख देते हैं यहाँ पे, t2 इज इक्वल टू 1/2 एंड t3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। यहाँ पे आके बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपसे पूछा सम ऑफ रूट, उन्होंने लिख दिया t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपसे पूछा गया है x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, नाउ व्हाट? t1 है क्या बच्चा? बताओ मेरे को एक बार। t हमने e टू द पावर x को तो माना था। e टू द पावर x को तो माना था हमने t। सो t1 इज इक्वल टू e टू द पावर x1, t2 इज इक्वल टू e टू द पावर x2 एंड t3 इज इक्वल टू e टू द पावर x3। मुझे क्या करना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है, इनको ऐड करना है, x1 x2 x3 को। क्या कर सकता हूं? वी ऑलरेडी नो व्हाट property of exponential function, that whenever we are multiplying two exponential with same base, their power will get add. So t1 multiply by t2 multiply by t3, तीनों क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सो e टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कट पिटा कितना बच गया? 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1/3 रह गया। सो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया बेटा? हमारे पास आ गया e टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1/3। मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है, विच इज ऑन द एक्सपोनेंट। सो व्हाट वी विल डू? वी विल टेक log with base e. So this will be x1 plus x2 plus x3 is equal to log 1/3 base e. 1/3 base e. Now again, this is written 1/n. So what you can write it? You can write it minus log 3 base e. ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। चलो ऑप्शंस चेक करते हैं।
ऑप्शन आ गया ये रहा। देखो मैंने कहा था कि वैसे तो बेस मेंशन होगा आपको, तो यहाँ पे बेस मेंशन है, और अगर बेस मेंशन नहीं होता log3 माइनस log3 log6 और माइनस log6 लिखा होता तब भी आप किस पे टिक करते, माइनस log3 पे। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन देखो आप एक बार ना, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मेरे को खुद को देख के डर लग गया इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 3 टू द पावर अंडर रूट log 5 बेस 3 है ना, माइनस 5 अंडर रूट log 3 बेस 5। ओहो गजब, मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड फिर इसके बाद प्लस, इसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, आएगा ही नहीं वरना। प्लस 3 टाइम्स 3 टू द पावर log 5 बेस 3 1/3, 3 टू द पावर log 5 बेस 3 और होल पावर 1/3। मैं वापस रिपीट क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, 2021-22 में क्वेश्चन आया था और बहुत डरावना क्वेश्चन था देखने में। एक बार तो टीचर्स को भी डर लग गया था इसमें, इवन मुझे डर लग गया था कि मैं क्वेश्चन लूं या नहीं लूं, बट क्वेश्चन वाज टू गुड टू लेफ्ट, तो बताना जरूरी था। 3 बेस 5 पावर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बड़ी तो इक्वेशन है, देख के क्या होगा, देख के आंसू आएंगे सबसे पहले तो, बट स्टिल क्वेश्चन हमें गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिमाग कैसे चलाएं, क्योंकि अगर इनके मैं रूट्स निकालने बैठा तो हो गया काम, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी लग रही होगी, कुछ ना कुछ तो सिंपल क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसी को एनालाइज करके देखता हूँ, किस चीज को, यार ये क्या लिखा हुआ है, ट्राई तो करके देखें एक बार। सो हमारे पास लिखा हुआ है नंबर 1 3 टू द पावर log 5 बेस 3, ठीक है, होल पावर 1/2। ठीक है, कोशिश करना चाहता हूं मैं इसको कैसे ना कैसे करके सिंप्लीफाई करूं। तो अगर मैं ऊपर ये जो लिखा हुआ है log, इस पावर को अगर मैं कंप्लीट कर दूं, दैट 3 टू द पावर log 5 बेस 3, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट log 5 बेस 3। ओके, सो व्हाट वी डिड, अंडर रूट log 5 बेस 3 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पावर में। ठीक है, अब हमारे पास एक और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि a टू द पावर b log c। ठीक है, यहां पे कोई बेस ले लो आप, लेट्स से d, तो ये a और ये c आपस में एक्सचेंज हो जाते थे। ठीक है, ये a और ये c आपस में एक्सचेंज हो जाते थे, तो आप क्या लिख सकते हो, c टू द पावर b log a बेस d, इसको यूज कर सकते हो आप। इसका मतलब मैं किसको और किसको एक्सचेंज कर दूं, इस 3 को और इस 5 को एक्सचेंज कर सकता हूं मैं। क्यों, अब यहां पे तो नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि यहां पे log की पावर क्या थी, रूट में था log, बट यहां पे तो रूट नहीं है ना log पे, दैट्स व्हाई वी कैन चेंज इट। और ये किसकी तरह बिहेव कर देगा, ये b की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ओके, सो जब आपस में एक्सचेंज करते तो आ गया 5 टू द पावर log 3 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 1 अपॉन log 5 बेस 3 होल पावर 1/2। ये लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि रूट ही तो है, और होल पावर 1/2 लिखेंगे तो 1 का रूट हो जाएगा। फिर ये तो वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये कितना बचा हमारे पास, 5 टू द पावर, नाउ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से 1 अपॉन log 5 बेस 3, इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 5, ये लिख सकते हैं। सो कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर log
3/5 का रूट, क्योंकि 1/2 पर पावर है। हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? हम स्टार्ट किए थे यहां से 3 log 5/3 से किए थे, और पहुंच कहां गए? यहां पे पहुंच गए। ठीक है, हुआ क्या? दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? इक्वल हैं। और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसका मतलब हमने जो इतना बड़ा ये लिखा था ये तो कैंसिल ही हो गया, काम का ही नहीं है हमारे ये। ठीक है, रेड कलर से कैंसिल करते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। सेम टू सेम हम इसमें ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये भी कैंसिल हो रहा हो। ठीक है, सो 3 log 5/3, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा होगा। स्टार्ट कहां से करोगे? 3 log 5/3 होल पावर 1/3। मेरे को इस पावर को होल करना है, दैट मीन्स 2/3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 3 log 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/log 5/3 होल पावर 2/3। मतलब हमने क्या कर दिया? 2/3 वाली पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वाली पावर तो किस में चेंज हो गई? होल पावर में चेंज हो गई, 1 में। और ये किस में चेंज हो गया हमारे पास? 2/3 में। अगेन क्या कर सकते हो? शॉर्ट में बता रहा हूं, अब सीधे सीधे 3 और 5 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये तो आ गया 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अच्छा लिख ही देते हैं, log 3/3। और ये अंदर का जो आपने लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो? log, आप लिख सकते हो 3/5 पावर 2/3। सो कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 5 टू द पावर, ये तो 1 हो गया, log 3/5 होल पावर 2/3। स्टार्ट कहां से किया था हमने? 3 log 5/3 होल पावर 1/3 से स्टार्ट किया था। इसका मतलब जो सेकंड नंबर पे भी जो इतना बड़ा लिखा हुआ था हमारे साथ, वो भी धोखेबाजी की गई थी हमारे साथ कि ये भी कैंसिल हो गया। ये दोनों चीजें सेम थी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? अब ये लो, तो इक्वेशन कुछ बची नहीं। इक्वेशन बची है हमारे पास x² -5x -3, x² -5x -3 = 0। बस यही इक्वेशन बची। अब इसके रूट्स तो इजीली निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? b² 25 - 12, हाँ अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना आएगा इसमें? हमें ये एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से ट्राई करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कौन सी वाली इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा प्लस ये दिस एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, बढ़िया। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -3। ओके, नाउ मुझे एक इक्वेशन है अल्फा प्लस 1/बीटा, कॉमा हमारे पास जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लो, हमारे पास यही था ना इक्वेशन में। हाँ ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, सो -3 हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, -5x हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर बेटा मैं इसके रूट्स निकालने बैठूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसका d निकालता हूं मैं। देखो d = b² दैट इज 25 प्लस 12 कितना आएगा? √37। और √37 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा जोर आएगा इसको करने में। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइड्स बाय बीटा, कॉमा अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइड्स बाय अल्फा। ये लिख सकते हैं हम इसको, ये लिख सकते हैं ना अपन। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? अल्फा बीटा की वैल्यू है -3। जैसे ही आप -3 रखोगे सो ये कितना हो गया आपके पास? -3 प्लस 1 डिवाइड्स बाय बीटा -3 प्लस 1 डिवाइड्स बाय अल्फा। ओके, हमारे पास आ गया -2 डिवाइड्स बाय अल्फा -2 डिवाइड्स बाय बीटा। मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में सिखाया था आपको, कैसे करोगे आप? लेट -2 डिवाइड्स बाय अल्फा इज इक्वल टू y। सो हमारे पास अल्फा कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 बाय y।
इसको रिप्लेस करना है हमें कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें रिप्लेस करना है. सो वी विल पुट इट. सो व्हाट यू विल गेट 4 डिवाइड्स बाय वाई स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड्स बाय वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. वापस से चेक कर लो, आपने माइनस 2 बाय वाई रखा है तो माइनस 2 बाय वाई रखने पे कितना आ गया, 4 डिवाइड्स बाय वाई स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड्स बाय वाई, हाँ ठीक है, माइनस 3. एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 10y माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, इज्जत से लिख लो थोड़ा, 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके, अगर रूट्स निकालने बैठते तो फिर अल्फा और 1/बीटा ही करते रह जाते. ठीक है, सो व्हाट यू गॉट नाउ, क्योंकि हमें इक्वेशन x में दे रखी है तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा, ये रूट्स होंगे इसके. ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या ये हमारे पास. हाँ, ऑप्शन देखो एक बार, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4, बी ऑप्शन. ठीक है, हमारे पास क्या आया था, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा बच्चा, आंसर. यही मेंस में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हार्ड दे दिया था, हार्ड तो नहीं था बट हाँ लेंदी था, आपसे मजदूरी करवा ली थी. ठीक है, देन वन मोर क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्सपोनेंशियल, 2016 क्वेश्चन, सॉरी एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल नहीं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का एक और क्वेश्चन है, 2016 क्वेश्चन है. बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के. ठीक है, करने में उतना ही जोर आता है. नाउ यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है, इक्वल टू 1 दे रखा है. बताओ अब इक्वल टू 1 कब आ सकता है, केसेस बनेंगे. केस 1, केस 1 कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, एंड देन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6, दिस कैन बी एनीथिंग. एनीथिंग क्यों, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 होगा. चलो उस केस में देख लेते हैं हम सॉल्व करके. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट्स का सम. ठीक है, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास रूट क्या आ गए, x इज इक्वल टू 1 और 4. ठीक है, केस 2 एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में चल रहा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5, ये भैया -1 भी तो हो सकता है, बट अगर ये -1 हो गया उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 जो पावर में है, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा इवन. कौन सी पावर होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा इवन पावर. ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया वैसे, हाँ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, या फिर x ही मान लो, हम x ही निकाल लेते ना, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही हो जाएगा. ठीक है, क्या होना पड़ेगा इसको, इवन. 60 लिखा हुआ है क्या ये, यहाँ 60 कर लो, इसको इवन होना पड़ेगा. ठीक है, चलो भैया इवन निकाल लेते हैं और क्या करें. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर मेरे को पता है x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होंगे. सो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. यहां पे चेक करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि वहां पे तो वो कुछ भी हो सकता था, बट यहां पे इसको इवन ही होना है. तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करो, कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10, हाँ 60. सो 2 स्क्वायर 4 8 कितना होगा, 12 माइनस 60, दैट विल गिव यू माइनस 48 विच इज इवन. तो ये वाला रूट एक्सेप्टेबल है हमारे पास. नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पे चेक करोगे, दैट विल बी 3 स्क्वायर 9 प्लस 12 माइनस 60. अब देखो ये इवन है, ये इवन है और ये ऑड है, तो ऑड प्लस इवन दैट इज ऑड, ये ऑड है, तो ये वाला रिजेक्टेड, क्योंकि -1 टू द पावर ऑड इज -1. राइट साइड में हमें क्या दे रखा था, +1 गिवन था. ठीक है, ये +1 गिवन था, तो वो कैंसिल हो गया. ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो यहां से हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया? केवल 2 इस केस से, आउटसाइड आया 2। और फिर अरे 2 पे गोला नहीं लगाते। हाँ, केस 3, केस 3 क्या लिखा हुआ है? कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो जाए तो 1 आएगा, बस नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू, या फिर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, सीधी बात। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो क्या आ जाएगा? 1। ओके, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना था बेटा? 4x था ना शायद पावर में, पूरे चेक कर लेते हैं उस ओरिजिनल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। रूट निकालोगे, सो रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर किसी को फैक्टर याद है? फैक्टर क्या होंगे 60 के? अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर यहाँ पे और 2 दे दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, फिर अगर मैं 3 और दे दूँ 12 मल्टीप्लाई बाय, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए बट फिर भी चलो धराचार्य लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 प्लस 240। अरे आ रहे हैं यार फैक्टर, तो कौन से फैक्टर आ गए थे फिर? चलो कोई नहीं, डिवाइड्स बाय 2, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस कितना आ गया? 256 डिवाइड्स बाय 2। 256 का रूट कितना होता है? 16। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 16 प्लस माइनस 16 डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, एक बार नेगेटिव ले लोगे, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? -4 प्लस 16 दैट इज 12 डिवाइड्स बाय 2 दैट इज 6। हाँ, और एक बार माइनस ले लोगे, सो दैट विल गिव यू 20 10 आ तो रहा है। हाँ, फैक्टर हो रहे थे ना यार 60 के, हो रहे थे 6 और 10 कर सकते थे अपन ब्रेक। चलो कोई नहीं, अगर नहीं हो रहे ब्रेक तो हचारे लगा दो। 6 एंड कब लिया ये 6 आपने? जब पॉजिटिव आया। और x इज इक्वल टू -10 व्हेन नेगेटिव। अब इसके साथ मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी कि मेरा बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बेस था क्या बेटा हमारे पास? बेस हमारा चल रहा था नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस 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 वाज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेस वाज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे आप? यहाँ पे आप लिखोगे एट x इक्वल टू 6, एट x इक्वल टू 6 यू विल गेट 36। हाँ, 6 पे क्या जाएगा ये? 36 माइनस 6 थोड़ी था बेटा, 5 था ना यहाँ पे। लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन, व्हाट वाज द बेस? क्योंकि मैंने यहां से देख लिया 6। ओके, बेस वाज 5। सो दिस विल बी 5। नहीं, वैसे तो वह हमारे तब भी गलत नहीं होता 5 लिखने पे। तो दैट विल बी एट x इक्वल टू 6, दिस विल बी 36 माइनस 30 प्लस 5 which is greater than 0, so this is acceptable. Again at next page कहाँ पे चेक करोगे? at x इक्वल टू -10। वाई? क्योंकि पावर 0 हो गई, अंदर का नंबर नेगेटिव हो गया तो 1 अपॉन में चला जाएगा विच इज, अच्छा पावर 0 हो गई तो अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर क्यों चेक कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, बस वो चेक करना है मैं, तो वो चेक कर लूंगा मैं। नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, नंबर कैन बी नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो तो नंबर 0 नहीं हो सकता, बात सही है। सो नंबर कुछ भी हो, हमें बस ये चेक करना है कि नंबर शुड नॉट बी 0। 0 टू द पावर 0 पता नहीं कौन सा पाप हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे कभी। ओके, सो एट x इक्वल टू -10, एट x इक्वल टू -10 दिस विल बी -10 स्क्वायर माइनस प्लस 50 प्लस 5 which is not equal to 0. Okay,
सो ये भी जीरो नहीं है। सो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर है उसकी पावर जीरो विच इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या क्या आ गए, एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे आंसर। शुरुआत वाले केस 1 से आंसर आए थे हमारे पास 1 और 4। ठीक है, केस 2 से आंसर आया था 2, x इज इक्वल टू 1 और 4 और 2। केस 3 से आंसर क्या आ गया हमारे पास केस 3 से आंसर आ गया हमारे पास बेटा 6 और -10। ठीक है 6 और -10। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, व्हाट आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस और सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार जब आपने सारे रूट से निकाल लिए तो उनका आप कुछ भी पूछे कॉम्बिनेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन विच इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, किसी टाइम पे हमारे पास ये मेंस और एडवांस दोनों का ही पार्ट रहा हुआ ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स सॉल्व इट। देखने में बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अच्छे को रोना जाता है इस क्वेश्चन की जब कैलकुलेशन करने लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं स्किप करने के मूड में था, बट कैलकुलेशन की थोड़ी सी ट्रिक्स बतानी है आपको, इसलिए मैं ले रहा हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन है, x0 और y0 इसके सॉल्यूशन है। हमसे पूछ रखी है वैल्यू x0 की, यहाँ पे कई क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड x0 या फाइंड y0। फाइंड x0 ये लिख देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, क्या करें, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा और एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। 2x पावर ln2, अगेन ln2 लिखा हुआ है तो बेटा बेस क्या है यहाँ पे, e है। ओके, देन 3y टू द पावर ln3। ओके, करते हैं कुछ जुगाड़। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को नीचे ले आते हैं। पावर क्या नीचे कैसे लाएंगे, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पावर नीचे आ जाएगी, और लॉग किसके साथ लेना है, बेस ई के साथ ही लेना है। तो ln 2x पावर में क्या चल रहा है हमारे पास, ln2 था, किसकी पावर थी वो, 2x की पावर थी, ln2 यहाँ पे ln 3y और होल पावर ln3। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन टेक पावर इन फ्रंट। सो ln2 इंटू ln इस 2x को भी क्या लिखते हैं, 2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln3, और अंदर क्या आ जाएगा, ln3 प्लस lny। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी ln2 होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू lnx, ln3 होल स्क्वायर प्लस ln3 इंटू lny। ये आ गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब घूम फिर के वही चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2 टू द पावर 3 टू द पावर lnx और 2 टू द पावर lny। ओके, टू मच हेडेक, 3 टू द पावर lnx 2 टू द पावर lny। कुछ जुगाड़ यहाँ पे भी करते हैं, ऐसा कहते हैं पावर नीचे लाते हैं। पावर लाने का तरीका वही, log ले लो, पावर नीचे आ जाएगी, lnx ln3 lny ln2। ठीक है, दिस योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्या काम किया जा सकता है, काम तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, बट एक तरीका है हमारे पास, माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। देखेंगे क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ln x है, वहां पे भी ln y है, वो बात अलग है, कोफिशिएंट डिफरेंट है। माइनस करके देखते हैं। सो ये लिखा हुआ है ln2 स्क्वायर प्लस ln2 माइनस ln3, और मैंने क्या कॉमन ले लिया, lnx कॉमन ले लिया। राइट साइड में ln3 होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा प्लस ln3 माइनस ln2 lny। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, वेरी गुड। मेरे को अब यहां पे एक और हिंट मिल गई कि अगर मैं ln3 को इधर ले आऊं या फिर पूरे को इधर ले आऊं तो मेरे को फायदा क्या होगा, ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर
होल स्क्वायर। ओके, पावर आगे मत ले आना, प्रॉपर्टी लगा के यहाँ आगे ले आओ, प्लस यहाँ पे ln2 माइनस ln3 है, और जब मैं इसको इधर लाऊंगा इस साइड ln3 माइनस ln2 को, तो चलो लिख ही देता हूँ, ln2 माइनस ln3 ln x, when we are taking this that side, so this will be minus of ln3 minus ln2, so plus ln2 minus ln3 ln y equal to 0। ओके, ध्यान से देखो पूरे में से क्या कॉमन आ गया, ln3 माइनस ln2 या ln2 माइनस ln3 कॉमन आ गया, सो ln2 माइनस ln3, अंदर क्या बच गया, इस वाले पार्ट में से तो ln2 प्लस ln3 बच गया, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट में से ln x, एंड फ्रॉम दिस पार्ट दिस विल बी प्लस ln y equal to 0. Now these are two different things, so this can be 0, then this will be 0, and using property आप क्या कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, so this will be ln2 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 3 multiply by x multiply by y equal to 0. Okay, so what you got, you got xy is equal to 1 by 6, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको, ln 6xy इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि वो x0 ही निकालना है तो x0 ही निकालते हैं हम सीधे सीधे, ln xy प्लस ln 6 इक्वल टू 0, मैंने एक स्टेप ज्यादा खींच दी, चलो कोई नहीं। सो व्हाट वी गॉट ln xy इज इक्वल टू माइनस ln 6, ये आपकी क्या इक्वेशन नंबर 3, याद रखो। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बेटा, वापस याद दिलाओ मेरे को, फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास ln x इंटू ln 3 ln y इंटू ln 2, यही थी इक्वेशन। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड क्या कर दूं मैं, दोनों साइड में ln x ln 3 है, यहां पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, प्लस मैंने ऐड कर दिया ln 2 ln x, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं पड़ती उससे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो होता ही है, ln x इंटू ln 2, ये ऐड कर दिया मैंने दोनों साइड। इधर भी क्या लिख दिया मैंने, ln x इंटू ln 2, और ऑलरेडी क्या था वहां पे, ऑलरेडी था वहां पे ln y ln 2, ठीक है। यहां से कॉमन क्या ले सकते हो आप, यहां से कॉमन ले सकते हो आप ln x, अंदर क्या बच जाएगा ln 3 प्लस ln 2, ये बच जाएगा। वहां से कॉमन क्या ले सकते हो आप ln 2, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास ln x प्लस ln y, ये बच जाएगा। ये कितना आ गया ln x, ये कितना हो जाएगा ln 6, दिस विल बी ln 2 एंड दिस विल बी व्हाट ln xy। और कमाल की बात है, अभी अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ln xy कितना था माइनस ln 6, सो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे माइनस टाइम्स, सो व्हाट यू गॉट ln x इज इक्वल टू माइनस ln 2, माइनस को अंदर पहुंचा दो, दिस विल बी ln 1 by 2, सो यू गॉट ln x is equal to ln 1 by 2, that means x is equal to 1 by 2, this is your answer। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, मेंस में गिवन कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे कैलकुलेशन बचानी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। ओके, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर गेटिंग इन मेंस, एडवांस नहीं, मेंस में आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे टाइम मैनेजमेंट पे चैलेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेंगे, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।